Hello everyone, welcome back to my channel. I am Nidhi Singhal and today I will take chapter light of class 8. Now let's have a quick look what we are going to learn in this video. So we will revise the chapter of light from our videos first. Then we will learn different terms of reflection. We will learn laws of reflection, regular and diffuse reflection, what are multiple images and how to make a kaleidoscope. Now let's revise about the light. Okay, so we all know that we can see an object only when light from an object enters our eyes. So we see various things with our eyes and light. It enables us to see the things from which it comes or from which it is reflected. Then we have studied about the types of objects, which are the luminous objects and the non-luminous objects. Luminous objects, these are those objects which have their own light like sun, candle, bulb, tube light, etc. And the non-luminous objects, they are those objects which do not have their own light. They are visible only when illuminated by the luminous objects, and because of this reason they are also called as the illuminated objects. Example of non-luminous objects kids are table, humans, moon, and many more non-luminous objects are surrounding us. Now let's revise about the reflection. So reflection, it is the scattering back of light by mirror or any shiny surface. When the light ray it strikes a mirror, then it bounces back, and this is known as the reflection. बच्चों हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लास 6 और 7 में वी हैव स्टडीड अबाउट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे. जो रे मिरर पर स्ट्राइक करती है दैट इज अवर इंसिडेंट रे, and the ray which is bouncing back from the mirror after striking the mirror, it is the reflected ray. Now the point on the mirror on which the incident ray strikes the mirror, this point is called as the point of incidence. And when we draw a perpendicular to the mirror at the point of incidence, then it is our normal. And the angle between the incident ray and the normal, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा होगा angle of incidence. The angle of incidence, we represent it as small I, and the angle between the normal and the reflected ray, it is our angle of reflection, and we represent it by small r. यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई? Let's move further and let us learn about the laws of reflection. बच्चों ऐसा नहीं है कि जब भी इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे उसका ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगी. No, it is not like that. There are certain laws which light have to be followed, which light has to follow, and this we call as the laws of reflection. So the reflection of light from a plane mirror takes place according to two laws which are known as the laws of reflection. And what are these laws? The first law of reflection, it states that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. कि हमारा angle of incidence जितना होगा उतना ही हमारा angle of reflection भी होगा. If my angle of incidence is 35 degrees, then my angle of reflection will also be 35 degrees. Okay, ये हमारा first law of reflection हो गया. Now, what is the second law of reflection? It states that that the incident ray, the reflected ray, and the normal, they all lie in the same plane. सेम प्लेन का बच्चों मतलब क्या है कि अगर जो मैं प्लेन मान रही हूँ अपने पेपर को, तो एक ही पेपर पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीज एक ही पेपर पर अपीयर होंगी. ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे एक पेपर पर फॉल हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे दूसरे पेपर पर जाकर फॉल होगी, ऐसा नहीं है. ये तीनों एक ही प्लेन पर, they will lie on the same plane only. Now to prove the laws of reflection, let us perform some activities. तो उसके लिए to prove the first law of reflection, we will take a plane mirror and इसको हम vertically
वी विल स्टैंड इट. ओके, हमने इसको एक पोजीशन पे खड़ा कर दिया है वर्टिकली, सो दैट इट विल नॉट मूव. नाउ किसी भी एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट से व्हेन वी पास द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम दिस लाइट सोर्स, ये इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक होगी मिरर पर, और ये हमें पता ही है जब इंसिडेंट रे मिरर से स्ट्राइक होगी तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पर फॉल हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई. नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल हेयर. हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जब हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों व्हेन वी मेजर इट, व्हाट वी विल सी कि दोनों का एंगल सेम ही आएगा. So it will prove our first law of reflection that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now let us perform an activity to prove the second law of reflection कि हमारी तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर पड़ेंगी, एक ही पेपर पर पड़ेंगी. तो इसमें क्या होगा, हम एक लाइट सोर्स लेंगे, उसमें से हम बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कराएंगे मिरर से, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो गई. अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने प्लेन पेपर लिया है बच्चों, इसको हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे. ओके, तो हम क्या देखेंगे, वी विल सी दैट the light rays, they are neither coming out of the paper or nor they are going down into the paper. ना तो वो पेपर से ऊपर आ रही है ना वो नीचे जा रही है, they will disappear. So this proves our second law of reflection, that they all lie in the same plane. नाउ लेट अस स्टडी फर्दर. अब बच्चों क्या हो गया, ये तो हमने एक पर्टिकुलर एक एंगल की बात करी कि इंसिडेंट रे हमने किसी एक एंगल से स्ट्राइक कराई. व्हाट हैपन व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन द नॉर्मल. मान लो ये मेरा नॉर्मल है और यहीं पर से ही मैंने सीधे सीधे ये अपनी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवा दी नॉर्मल पर, तो क्या होगा. ओके, सो ये तो होगा ही ना कि जब भी रे मिरर पर फॉल होगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी. सो व्हेन एन इंसिडेंट रे fall on the normal, then the angle of incidence it will be 0. तब तो कोई एंगल से आ नहीं रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0. एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था वो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. याद है ना, अभी अभी पढ़ा था हमने. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट ऑल्सो विल बी 0. तो यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो कोई भी कंडीशन हो हमारी लाइट रे बच्चों, इट फॉलो ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ लेट अस सी व्हाट वी हैव in our next slide. So it's the type of reflection. So basically kids, there are two types of reflection, the regular reflection and the diffuse reflection, or we can also say it as the irregular reflection. तो बच्चों हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, when light rays fall on smooth shiny surface, they are reflected in a particular direction and they are parallel. So such reflection it is called as the regular reflection, and the image are formed by regular reflection only. They produce a clear image. So हमारी पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे किसी भी मिरर पर पड़ रही है और जब वो स्ट्राइक करेगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्ट्राइक करेगी. उसमें लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट करेंगी तो ऐसा नहीं है कोई लाइट रे किसी डायरेक्शन में जा रही है कोई किसी में जा रही है, ऐसा नहीं होगा. पैरेलली आएंगी और पैरेलली ही स्मूथली वो चली भी जाएंगी. सो दिस इज अवर रेगुलर रिफ्लेक्शन, बट अपोजिट टू इट इज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. And this diffuse reflection it takes place from rough surfaces. यहाँ पर हमारा सरफेस जो है रफ होता है तो इंसिडेंट रे ऊपर नीचे पड़ती है. ठीक है, वो आती तो पैरेलली है बट उसका क्योंकि सरफेस ऊपर नीचे होगा या रफ होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं हमारी, दे रिफ्लेक्ट बैक इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड नो इमेज इज formed in this condition. So such type of image, such type of reflection, it is called as the diffused reflection. Now let us have a look about the these reflections, the regular reflection and the diffuse reflection. देखो बच्चों यहाँ पर ये स्मूथ ये बिल्डिंग ऐसा नहीं है ऊपर नीचे है, ये यहाँ पर हमारा वाटर सरफेस है जो कि बिल्कुल प्लेन है विदाउट एनी मूवमेंट.
यहाँ पर कुछ नहीं मूवमेंट है, इसलिए हमारी जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है एकदम क्लियर हो रही है। और इसकी इमेज कैसे बनती है, ये हमारी इंसिडेंट रेज आ रही हैं, ये एकदम हमारा प्लेन सरफेस है और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी वो भी एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, और पैरेलली दे विल गो पैरेलली आल्सो। सो दिस इज माय रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट अबाउट द डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर पानी में कुछ मूवमेंट है तो यहाँ पर मेरी इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई, ब्लर हुई, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनती ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि मेरा रफ सरफेस है, इंसिडेंट रे आ तो बहुत स्मूथली रही है, लेकिन वो रफ सरफेस पे जब पड़ती हैं तो जो लाइट रेज हमारी रिफ्लेक्ट होती हैं वो बहुत ही अनइवन होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं। इसकी वजह से ही हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं होती। Kids, you know that most of the objects around us, they cause this type of reflection only, diffuse reflection. Okay, because most of the objects around us, they all are rough substances. So most of the things, they do the diffuse reflection. Now let's study further and have look. Oh, it is the periscope here. So बच्चों, periscope को पढ़ने से पहले let us revise about the characteristics of a plane mirror. प्लेन मिरर का याद है ना कि प्लेन मिरर पर लाइट रेज जब स्ट्राइक हो रही थी तो किस तरह की इमेज बन रही थी। सो लेट अस रिवाइज कि प्लेन मिरर पर जो इमेज बन रही थी वो वर्चुअल इमेज थी. इट इज नॉट अ रियल इमेज बिकॉज वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन a sheet of paper, on a paper or on any screen. And second, that the image, it is forming behind the mirror, and the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. Then the next property or characteristic of the image, that it is of the same size as the object, it is erect and it is literally inverted. Now let's study about this periscope, keeping all these characteristics of the plane mirror in our mind. तो बच्चों, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट in which reflected light is reflected again to see the objects that are directly out of sight. तो आपने कभी सोचा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी वापस से रिफ्लेक्ट की जा सकती है? Yes, it is possible. जब हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं तो उसमें एक पर तो इंसिडेंट रे होगी और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नाउ फॉर द सेकेंड मिरर, दैट रिफ्लेक्टेड रे जब वो उसके ऊपर पड़ेगी, स्ट्राइक करेगी, so it will act as the object, as the incident ray for the second mirror, and it will reflect again. So periscope, kids, it is an example of that reflected ray light can be reflected again. ओके, सो अब पेरिस्कोप की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि पेरिस्कोप बना कैसे होता है. ये हमारा एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसमें बच्चों दो मिरर्स हमारे अटैच्ड होते हैं एट द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ट्यूब. ओके, और ये ऊपर से और नीचे से दिस लॉन्ग ट्यूब इट इज केप्ट ओपन. तो एक से तो हमारी लाइट रे आती है. अच्छा, और बच्चों इनमें क्या क्वालिटी होती है? ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं ये कॉर्नर्स पर तो प्लेस होते हैं बट दे आर केप्ट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड दे आर केप्ट इन पोजीशन दैट दे फेस ईच अदर पैरेलली. एक दूसरे को देखो, एक दूसरे के पैरेलल है ना, और जो इसके एंड्स हैं यहाँ से इनका जो एंगल बनना चाहिए वो 45 डिग्री बनना चाहिए. अब होता क्या है कि इसका यूज क्या है कि हमारे को कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देखना है जो हमारी साइट से बाहर है, जिसको हम ऐसे ही नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप बनाते हैं. अभी जैसे कि यहाँ पर ये एक लड़का खड़ा है और इसको ये ट्री देखना है दूर से, ठीक है, बट उसके और ट्री के बीच में ये लंबी सी वॉल है. तो उसने क्या करा, उसने ये एक पेरिस्कोप बना दिया जिसमें कि एक यहाँ से ओपनिंग है और एक ऊपर से ओपनिंग है. अब उसने ये बनाने के बाद जिसमें कि उसने दो प्लेन मिरर्स अटैच करे हैं, अब नाउ ही विल फोकस ऑन दिस पार्ट जहां से उसको दिखेगा ये मिरर में से, यहाँ से लाइट रेज आएंगी की ट्री की और इस वाले मिरर को स्ट्राइक करेगी. ठीक है, ये एक हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और ये यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑन दिस मिरर, ऑन द सेकेंड मिरर. अब ये इसके लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है फॉर द फर्स्ट मिरर.
बट इस सेकेंड मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ से ये स्ट्राइक करेगी और ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बॉयज की आईज में इमेज बना देगी। तो बॉय अपनी आंख से, अपनी इस वाली इमेज फॉर्मेशन से देख पाएगा कि वॉल के दूसरे साइड में क्या है। तो आपको बच्चों ये समझ में आ गया कि ये पेरिस्कोप की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। चलो जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। So a periscope consists of a long tube having two mirrors fitted at its two ends. Okay. Now the mirrors, they are parallel to one another and reflecting surface face each other. Each mirror makes an angle of 45 degree with the side of the tube, and there are two holes, one in the front of top mirror and one in front of the bottom mirror. Okay बच्चों, ये पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। Now let's have a look about the uses of periscope. So periscope is used by the soldiers sitting in the bunker to see the activities of the enemies. तो अपने बंकर में बैठ जाते हैं नीचे छुपकर और पेरिस्कोप बना लेते हैं और दूर से तो और फिर अपने पेरिस्कोप से वो देखते हैं, क्योंकि सामने हमारे उसके जो सामने कुछ भी होगा पेरिस्कोप के, उसकी इमेज उसकी लाइट रे पड़ेगी हमारी फर्स्ट मिरर पर और फिर वो मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा ऑन द सेकेंड मिरर और फिर वहां से इट विल बी रिफ्लेक्टेड अगेन टू द आई ऑफ द सोल्जर। ओके, सो पेरिस्कोप की हमारा यहाँ पर फंक्शन काम आ गया। Now the second use of periscope is that it is used by the officer sitting in the submarine. सबमरीन आपको बच्चों पता है ना कि शिप्स होती हैं जो कि पानी के अंदर चलती हैं। तो अब हमारे पानी के ऊपर क्या है क्या नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा, उसको देखने के लिए पेरिस्कोप यूज करते हैं ऑफिसर्स जो कि सबमरीन में बैठे होते हैं। ओके, now periscope it also enables a person to see the haircut at the back of his head at a hairdresser's shop. जब बाल कटवाने जाते हो सलून में तो पीछे से वो हेयर ड्रेसर आपको मिरर करके दिखाता है ना कि बाल ठीक से कटे हैं कि नहीं कटे हैं पीछे से। सो दिस इज द पेरिस्कोप। और बच्चों ये होता कैसे है? सो द लाइट कमिंग फ्रॉम हेयर एट द बैक ऑफ द हेड ऑफ द पर्सन इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्मॉल मिरर जो कि पीछे है, and where it is reflected onto a big mirror which is in front of the person, and this mirror reflects the reflected light again, the big mirror, it reflects the reflected light again, due to which the person can see the image of the back hair of his head, showing how the hair have been cut at the back side of his head. तो यहाँ पर ये हमारे पेरिस्कोप के uses हो गए। Now let's see. ओके, सो ये हमें बताता है दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप, इट शोज दैट रिफ्लेक्टेड लाइट इट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। नाउ लेट्स लुक अबाउट द मल्टीपल इमेजेस। व्हाट आर द मल्टीपल इमेजेस किड्स? अच्छा, आपने देखा होगा ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी, जिसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं, एक ही मिरर है तो हमारे को अपनी एक ही रिफ्लेक्शन, एक ही इमेज दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो मिरर रखे हैं, आमने सामने रखे हैं या किसी एंगल पर रखे हैं, तो हमारे को बहुत उसी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। तो दिस इज द मल्टीपल इमेज। सो ये बनती कैसे हैं? So when two plane mirrors, they are inclined at an angle, they can form multiple images of an object. और ये होता क्यों है? So it happens because the image formed in one plane mirror acts as an object for the second mirror, for the other plane mirror. अभी यहाँ पर ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, इसने अपनी इमेज यहाँ पर बना दी। ओके, अब ये वाली जो इमेज है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसलिए इसकी इतनी सारी इमेजेस बन गई। नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि कई बार हम लोग बच्चों देखते हैं कि 2 इमेज बन रही हैं, कभी 3 बन रही हैं, कभी 5 बन रही हैं, कभी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारी ये जो मिरर्स हमारे किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं ये हमारी कितनी इमेजेस बनाएंगे? सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस there is a formula, and what is that formula? It is the number of image formed। निकालने के लिए suppose my number of image formed is n, so the formula is 360 degree divided by this theta, and what is this theta? It is the angle between two plane mirrors, so
360 degree divided by the angle between two plane mirror minus 1. So this is my formula to calculate the number of images. So now suppose if my angle between two plane mirrors is 90 degree, अगर जो 90 डिग्री एंगल पर मेरे दो प्लेन मिरर रखे हैं तो कितनी इमेजेस बनेंगी बच्चों? सो 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 डिग्री माइनस 1, तो कितना हो गया? 4 माइनस 1, क्योंकि 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 इट इज 4. 4 minus 1 is equal to 3. So if the two plane mirrors they are kept at an angle of 90 degree, my images formed will be 3. समझ में आया बच्चों यहाँ तक? ओके, अब बच्चों एक और चीज है, हम क्या देखते हैं कि देखो जैसे जैसे ये अभी दूर है मिरर, है ना, अब जैसे जैसे हमारे ये दोनों मिरर्स पास आते रहते हैं, जैसे जैसे इनके बीच का एंगल कम होता रहता है, हमारी इमेजेस का नंबर बढ़ता रहता है. देखो पीछे वाली इमेज में जो है थोड़ा सा पास में था तो उसमें 3 इमेजेस बन रही थी, 3-4 इमेजेस बन रही थी. इसमें ये थोड़ा सा दूर है, इनका एंगल ज्यादा है तो इसमें 3 इमेजेस बन रही हैं, और इसमें और भी कम है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसमें बहुत ज्यादा इमेजेस बन रही हैं. So as the angle between two plane mirror decreases, the number of images increases. अब बच्चों कई बार हम ऐसे देखते हैं ना कि बहुत सारी इमेज बन जाती हैं, इन्फिनाइट तक बहुत लंबी लंबी बनती रहती हैं. तो इसमें क्या है, if the two plane mirrors they are kept parallelly to each other, और उन दोनों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, सो देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इनफिनाइट. अगर जो दोनों प्लेन मिरर्स पैरेलली सामने सामने रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी इनफिनिट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कैलेडोस्कोप. कैलेडोस्कोप जानते हो ना बच्चों, कई बार आप खेलते हो, उससे खेलने के लिए भी काम आता है. उसमें क्या होता है कि हम उसको देखते हैं गोल गोल घुमा घुमा के, और उसके अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट तरीके की कलरफुल सी इमेजेस दिखाई देती हैं. सो व्हाट इज दैट? So the making of kaleidoscope, it is based on the principle of multiple reflection. इसमें इसको बनाते कैसे हैं बच्चों? ओके, सो इसमें हमने लिया है, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 प्लेन मिरर्स. इसमें हमने 3 प्लेन मिरर्स लिए हैं, और इनको जब हम इंक्लाइन करेंगे, इनको हम खड़ा करेंगे एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू वन अनदर, and then we fit these 3 mirrors into a cardboard tube. एक ट्यूब के अंदर इनको हम 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे, खड़ा कर देंगे, और दोनों तरफ से अभी तो हमारा ओपन ही है, तो अब एक एंड को हमने क्लोज कर दिया. किससे? डिस्क से. उनमें से एक डिस्क हमारी ट्रांसपेरेंट होगी और एक हमारी ट्रांसलूसेंट होगी. नाउ अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर बहुत सारे ग्लास के पीसेस या फिर बैंगल्स हम इसके बीच में डाल देंगे, और दूसरे एंड को, द सेकेंड एंड, इसको हम ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर कर देंगे. इट इज जस्ट फॉर व्यूइंग द इमेज फॉर्मेशन. अब हम इसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे तो व्हाट वी विल सी, एज द ट्यूब इज रोटेटेड डिफरेंट पैटर्न्स आर फॉर्म्ड. ये आप देखते हो ना. और इसकी खासियत क्या होती है बच्चों कि जितनी बार आप इसको करोगे ना रोटेट, उतनी बार ही आपको डिफरेंट तरीके की, एकदम अलग तरीके की आपको पैटर्न दिखने के लिए मिलेगा. इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कैलेडोस्कोप में द कलर्ड ग्लास पीसेस दे एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स, and the inclined plane mirrors form multiple images of these glass pieces by repeated reflection which look like beautiful patterns or designs. तो ये हमारे जो glass pieces हमने इसमें डाले थे, they are acting as an object, और जब हम उसको रोटेट करेंगे तो वो स्ट्राइक करेंगे मिरर पर और डिफरेंट तरीके के पैटर्न्स बनाएंगे. ओके किड्स, अभी मैंने आपको बताया, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ कैलेडोस्कोप इज दैट वी कैन नेवर सी द सेम पैटर्न again, and this is mainly used by the designers of wallpapers and fabrics as well as by artists to get ideas for new patterns. So kids, with this I conclude this video, and in my next video I will explain the basic structure and functioning of eye. Till then, keep learning and do like, share and subscribe. Bye bye. Take care.